بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ہاتھ میں بڑی ہی خوبصورت کتاب رقص آوارگی ہمارے بہت پیارے دوست جناب الطاف بخاری کی شاعری کی کتاب ہے۔ پس دیوار تو سائے بھی محو رقص ہوتے ہیں، یہ ضد ہے میری صورت سے سر دیوار می رقصم۔ الطاف بخاری صاحب کی یہ شاعری کی کتاب جو ہے، جس کا نام رقص آوارگی رکھا ہے، اس کتاب کو بڑے خوبصورت انداز میں پبلش کیا گیا ہے۔ ماورا پبلشر ماورا لاہور سے یہ پبلش ہوئی ہے، اور اس کتاب کا انتساب انہوں نے غزالہ بخاری کے نام، جس نے میری کانٹوں بھری زندگی کو گلستان میں بدلنے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے۔ دوستو، سید الطاف بخاری کو ہم شاعر جمال بھی کہتے ہیں۔ ان کی اس شاعری کی کتاب میں افتخار عرب صاحب، حسن نثار صاحب، مقصود وفا صاحب اور سید حفیظ مخفی، ان چار عالی مرتبت جو شخصیات ہیں، ان کے جو ہیں تاثرات اس میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں افتخار عرب صاحب نے جو فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مختصراً۔ میر اقسم کی روایت کے سلسلے میں الطاف بخاری کی کتاب کا مسودہ رقص آوارگی دیکھا تو جی خوش ہوا، اور دل سے دعا نکلی کہ اردو کی بستیوں سے بہت دور نئی زمینوں میں کیسے اچھے اچھے شاعر اپنی تخلیق کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ اعتراف کیا جانا چاہیے ان تخلیق کاروں کا جو ستائش اور صلے کی پرواہ کیے بغیر دوسرے ملکوں میں تمام آسودگیوں کے باوجود اپنی ادبی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے تعلق اور نسبت کو لفظوں کا جامہ پہناتے رہتے ہیں۔ یہ مجموعہ شاعر کی پہلی پیشکش ہے۔ ظاہر ہے کہ اس فنی کامیابی کے بعد شاعر ایک تازہ یقین کے ساتھ اپنا آئندہ کا سفر جاری رکھے گا۔ احمد مشتاق، عارف امام، عشرت آفرین، افضال فردوس اور غضنفر ہاشمی کو اپنے قبیلے میں ایک نئے اور اچھے شاعر کا اضافہ مبارک ہو۔ یہ جناب افتخار عرب صاحب نے محترم سید الطاف بخاری کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ حسن نثار صاحب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، میں سید الطاف بخاری کو نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ کبھی دیکھا تک نہیں تھا، سو جب مجھے اس کی شاعری کا مسودہ ملا تو سچی بات ہے کہ ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ پھر چند دن تک میں مسودے کو اور مسودہ مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک نیم شام نیم دلی سے رقص آوارگی کی پہلی جھلک دیکھی تو کونیا میں مولانا روم کے مزار پر دیکھا رقص سے درویش اور اس کے رقاص یاد آ گئے۔ صفحہ در صفحہ، دائرہ در دائرہ، شعر در شعر، رقص در رقص دیکھ کر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کچا سونے اور پھر یہ سونا کندن بننے کے لیے جان لیوا سفر کا کامیاب آغاز کر چکا ہے۔ میری دعائیں بھی اس کے رختے سفر میں شامل ہیں۔ اسی طرح جناب اس حوالے سے مقصود وفا صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے اس کا
थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं इन सफ़ात पर बतौर ख़ास इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मुझे अल्ताफ़ बुखारी की शायरी पर बात करनी है, लेकिन पहले मैं इनसे अपनी ज़ाती वबस्तगी के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी शख्सियत में जो मोहब्बत है वो भी शायराना है। पहले पहल मैं इस मोहब्बत को पहचानने की कोशिश करता रहा, जिसमें इंतहाई एहतराम के साथ एक वालेहानापन की दिलावेज गर्मजोशी भी थी, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इनसे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन ये मुलाकात कब और कहाँ हुई मुझे याद नहीं। एक दिन अचानक इनका फोन आ गया। इतनी लंबी बात हुई कि चाय का कप मेज पर पड़ा पड़ा ठंडा हो गया, लेकिन इनकी बातों में अपनायत की गर्मजोशी ने मुझे यूं मुतासर किया जैसे हम बहुत पुराने दोस्त रह चुके हैं। बहरहाल जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ लिखा है इनके हवाले से। इसी तरह सैयद हफीज मखफी साहब ने जो इनके हवाले से लिखा है, थोड़ा सा पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। शेर किसे कहते हैं? इस सवाल पर आज तक कोई मुत्तफिक अलग जवाब सामने नहीं आ सका, लेकिन मेरा मानना है कि जब जज्बात को तसव्वुर का कालब मिल जाए और तसव्वुर को अल्फाज का मुतनासिब बदन मैसर आ जाए तो शेर खल्क हो जाता है। मुझे ये भी तस्लीम है कि हर शख्स अपनी मरूजी हालातों, कैफियत और एहसासात को अपने मुनफरद जाविया निगाह और मुख्तलिफ जहर से परखता है। एक मंजर हर शख्स के लिए अलग मैनवी हुस्न रखता है। यही वजह है कि हर शख्स वजदान, मैलान और रुझान के मामले में भी दूसरे से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। रक्से आवारगी में आप अल्ताफ़ बुखारी की किसी भी हमदोनात या गज़ल नज़म को पढ़ लें, कहीं भी शेरियत और शेरी इजहार का मैदान कम होता नजर नहीं आएगा। इनकी शेरी असनाफ का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि अल्ताफ़ बुखारी की जड़ें शायरी में बहुत गहराई तक पेवस्त है। तो जनाब, ये जो सैयद हफीज़ मखफी साहब ने अल्ताफ़ बुखारी की शायरी के हवाले से कहा, मैं मुख्तसर पढ़ रहा हूँ ज़्यादा, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने अपने हवाले से जो लिखा है, चंद लाइनें में उसकी पढ़ के सुना देता हूँ कुछ अपने बारे में। उम्र भर कागज़ और कलम से लिखते रहने के बावजूद भी इन सफ़ात पर आपसे मुखातब होना वाकई एक कठिन मरला है। अपने बारे में लिखना, वो भी पूरा सच लिखना, जान जोखम में डालने के मुतरादफ है। इस पर हालत यह कि दामने अमाल में कोई राइजुल वक्त असासा भी मौजूद नहीं। लेकिन इधर मेरे बेहद प्यारे भाई सैयद हफीज़ मखफी का हुक्म है कि अपना तारफ़ खुद लिखो। मेरे वालिद मोहतरम का ताल्लुक पुठार से और वालदा साहबा का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के एक मारूफ घराने से था, जिनकी एक मजबूत मजहबी शनाख्त थी। चनाचे वाला साहब तलीम से फारग होकर अपने साथदार शेख के हुक्म पर पंजाब के मुख्तलिफ जिला रावलपिंडी, सरगोदा, शेखपुरा में दीनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। और इस दौरान में उन्होंने कई मसाजिद और दीनी मदारस तामीर कराए। फिर 1980 में शेखपुरा के करीब फरुखाबाद में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर ली और 1986 में इसी मुकाम पर आपने वफात पाई। यहीं आपका मज़ार और मदरसा कायम है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मेरी तमाम बुनियादी और आला तलीम एक दूर अफ्तादा गाँव के एक छोटे से सरकारी प्राइमरी स्कूल में शुरू होकर वहीं पर मुकम्मल भी हो गई। मतलब ये कि प्राइमरी जमात पास करने के बाद जिसका सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, मैं किसी और तलीमी इदारे में दाखिल ना हो सका। इसलिए तालीम का मामला तो बस यहीं तक रहा। मगर कम सिनी ही में हादसात और सदमात का एक लामुतनाही सिलसिला चल निकला और हालात व वाक़यात की डोर उलझती चली गई, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को ही तलप करके रख दिया, जिनका तज़किरा इन सफ़ात में करना लाहासिल है। होश संभाला तो ज़िंदगी एक कटी पतंग की तरह हवादस की हवा में डोलती सबलती दिखाई दी। मैं अपनी ख़ानदानी रवायात से बागी तो कभी नहीं रहा, लेकिन ग्रेस पा ज़रूर रहा हूँ। इस ग्रेस पाई ने मुझे इन रवायात को अपनाने और इनमें अपना मकाम नाम बनाने दिया। यूँ लाजम था अपना बार अपने कंधे पर उठाया जाता, अलबत्ता इस थकान ज़दा रस्ते पर मुझे अपनी माँ की दुआओं की छत्तर छाया हमेशा साया फगन महसूस होती रही। और इनकी इन्हीं रोशन दुआओं का हाला आज भी मेरे वजूद के गिरद अपना नूरानी हसार बनाए हुए है। यकीनन मैं मुरवजा तलीम हासिल ना कर सका और अनपढ़ ही रहा, लेकिन मुझ में मौजूद सीखने और मुशाहदा करने की फितरी ख्वाब मौजूद थी। इसी वजह से कलम और किताब से मोहब्बत हर हाल में कायम रही। तो दोस्तों, जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो इसमें बड़ी तफसील के साथ जनाब अल्ताफ़ बुखारी ने अपना जो है वो तारुफ बताया है। अपने बारे में बड़ा वो बातें लिख दी हैं जो कि आम तौर पर लोग नहीं लिखते। और ये एक सच्चे इंसान की जो है वो
पहचान है। अल्ताफ बुखारी साहब ने हमदे बारी ताला से आगाज किया। मालके दो जहां खालके जिस्म जान नूरे अर्ज़ व समा साहिब कुन फरकान। इस तरह नात में लिखते हैं फिजान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये फिजान नात है, हर रोज लिखा जा रहा दीवान नात है। दोस्तों, इसमें उन्होंने अपने दोस्तों सैयद मकसूद अली शाह और डॉक्टर ज़फ़र इक़बाल नूरी जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात गो हैं, इस नात में उनका भी तज़किरा किया। मकसूद और ज़फ़र ने भी ये रास्ता चुना, आसान नहीं ये रास्ता मैदान नात है। अल्ताफ सरबुलंदी किस्मत पे है निसार, जिसको भी मिल गया यहाँ इरफान नात है। तो ये जनाब मुख्तसर सा तारुफ था। इसमें जो उन्होंने अपनी किताब में, इस पोइट्री की किताब में जो चीज़ें इसमें शामिल हैं, नजराना अकीदत बहजूर सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन, इसमें आज़म नातिया नज़म है, बिनते कश्मीर है, गज़लियात हैं, महवे गर्दश ज़मीन आसमां रक्स में। उसके बाद 3 अशार, हम के रहते थे दिल रुबाओं में, इश्क जब तक जाऊं नो दिल का रहनुमा होता नहीं। फिर उसके बाद अनवान है, हमने जब उनसे पहली मुलाकात की, मोहब्बत का वो सिलसिला क्या हुआ। इस तरह बहुत खूबसूरत अनवानात दिए हैं इन्होंने अपनी गज़लों को। इसमें नज़में भी शामिल हैं और इसके साथ साथ इनकी जो सफ़ा नंबर 60 पर मीर अक़सम के नाम से जो इन्होंने लिखा है, वो मैं आपको उसके चंद अशार पढ़ के सुना देता हूँ। मीर अक़सम बर ज़मीन हज़रत उस्मान बरहमदी, वो शौके दीद का आलम के पेशे यार मीर अक़सम, नहीं कुछ रंजे रसवाई सरे बाजार मीर अक़सम, अगरचे मोतबर ठहरा मुझे वो जुब्बा व खिलत, सरे ज़ौक़े जनू क्या बुक़्क़ते दस्तार मीर अक़सम, रहूं क्यों बरगे गुल पे मैं मिसाले कतरा शबनम, मेरे सर में तो सौदा है बनो के खार मीर अक़सम, अदाए हुस्न पे तुम नाचना चाहो चलो नाचो, हिदाए इश्क में लिपटेगी जब गुफ्तार मीर अक़सम, वो नूरे लम यज़ल टपके है उसे, वो नूरे लम यज़ल टपके है उस चश्मे गज़ालां से, दमे गुफ्तम चले अबरू की तीखी धार मीर अक़सम। बड़ी खूबसूरत जनाब शेर मुलाजा करें। पसे दीवार तो साए भी महवे रक्स होते हैं, पसे दीवार तो साए भी महवे रक्स होते हैं, ये जिद है मेरी सूरज से सरे दीवार मीर अक़सम। दोस्तों, जनाब अल्ताफ बुखारी की शायरी की हवाले से एक बात आपको अर्ज करती चलूँ। पिछले 10 सालों से मेरी आम तौर पर जो तकारीर मैंने लाहौर हाई कोर्ट बार या किसी भी फोरम पर करता हूँ, तो उसमें इनके अशार बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ कि जनाब मैं आपको वो सुना देता हूँ कि अवाइज़ों के रूप में छुपे मदारियों सुनो, बागबां के भेस में छुपे शिकारियों सुनो, तुम्हारे कार पुरफसूं की आखिरी ये शान है, खुदा की सरजमीन पर खुदा का राज हो, ना कोई हुक्मरान हो ना साहिब खराज हो। मुझे ये इनके अशार बहुत पसंद हैं और अक्सर मैंने, आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे कि ये अशार मैं पढ़ता हूँ। तो जनाब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जनाब अल्ताफ बुखारी साहब को जो है बहुत कामयाबियाँ अता फरमाए और इन्होंने जो कुछ ये लिखा है उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू बोलने समझने वालों के लिए यकीनन ये बहुत बड़ी खिदमत है। पसे दीवार तो साए भी महवे रक्स होते हैं, ये जिद है मेरी सूरज से सरे दीवार मीर अक़सम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।